External Affairs Minister Sushma Swaraj has reiterated India-Pakistan secretary-level talks have not been called off. She said, although there are issues between the two countries, there is ease and warmth in their relations. Swaraj also said Modi government wants to resolve all issues with Pakistan through dialogue. Responding to a question, Sushma Swaraj said India was awaiting a solid response from Pakistan on Pathankot terror attack. पहले जब भी कोई आतंकवादी घटना होती थी तो पाकिस्तान डिनायल मोड में चला जाता था। वो सीधे इनकार करता था और कहता था कि भारत हम पे बेवजह आरोप लगा रहा है। ये पहली बार है कि जब पठानकोट के हमले के बाद स्वयं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री मोदी को फोन आया और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे सबूत दे दें तो मैं निश्चित तौर पर इस पर ठोस कार्रवाई करूंगा। उन्होंने इनकार भी नहीं किया बल्कि अपनी ओर से ये कहा कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। कि बड़ा अंतर पठानकोट में और इससे पूर्व की घटनाओं में है जो अपने को देखना होगा। एक मैं ये कहना चाहूंगी कि इन रिश्तों के मोह में हम असावधान हो जाएंगे या सतर्कता में कमी कर देंगे, ये नहीं है। हमारी सतर्कता, हमारी सावधानी पूरी तरह बनी हुई है। हमने इस सरकार के आते ही पाकिस्तान की तरफ त्रिसूत्रीय नीति, 3 सूत्री नीति बनाई। पहला, हम हर मुद्दे को वार्ता से हल करना चाहते हैं। दूसरा, पर वार्ता के पक्षकार केवल 2 होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कोई तीसरा देश या कोई तीसरा समूह इसमें भागीदार नहीं हो सकता। और तीसरा, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। आज तक की हमारी पूरी नीति, कोई भी घटना हुई हो, आप इन 3 कसौटियों पर तोल कर देखिए। India has stepped up diplomatic engagements for entry into the nuclear suppliers group. The government has said it is hopeful that India will become a member of the elite nuclear club. Addressing the annual press conference of the Ministry of External Affairs, Minister Sushma Swaraj said India will be able to convince China to support India's NSG bid. हम लोग प्रयासरत हैं कि इसी वर्ष हम एनएसजी के मेंबर हो जाएं। External Affairs Minister Sushma Swaraj expressing confidence that India will be on nuclear high table this year, but China remains its biggest hurdle. However, Sushma says that India will be able to convince China to back India's bid for the nuclear suppliers group membership. Confirming India Today's report about Foreign Secretary S. Jaishankar's hushed-up trip to Beijing to push for India's bid, Sushma said that efforts are on to bring China on board. अभी जब विदेश सचिव भी गए थे तो उन्होंने भी बातचीत में यही कहा कि आप हमारे बारे में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रेडेंशियल्स की बात करें तो अच्छा है। 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। India Today had exclusively reported on Saturday that Jaishankar made an unscheduled visit to Beijing to meet Chinese Foreign Minister. The visit comes after Jaishankar has been spearheading India's diplomatic outreach, visiting key foreign capitals and explaining New Delhi's case. Meanwhile, speaking exclusively to India Today's editorial director Raj Chengappa, Russian President Vladimir Putin hinted that he was in touch with his Chinese counterpart and was trying to convince Beijing to support India's bid for NSG. Will there be concrete outcomes finally at that 24th of June plenary summit of the NSG in Seoul? Will negotiations go down to the wires? We will be tracking that story very closely. Here at Jawaharlal Nehru Bhavan with video journalist Rajiv Srivastav, Smita Sharma for India Today. External Affairs Minister has assured that Vijay Mallya will be extradited by India. Responding to a question from India Today, Sushma Swaraj said External Affairs Ministry has suggested a few changes in the extradition request sent by the Enforcement Directorate. She said once the ministry receives the revised application, the extradition request will be sent to the United Kingdom. भारत का ये यूके के साथ अच्छे संबंध है, विजिट भी अच्छा रहा यूके में। तो विजय माल्या और ललित मोदी की प्रत्यार्पण को लेके क्यों मदद सहयोग नहीं मिल पा रहा है यूके से? ऐसा है अशोक जी, जो आपका पहला सवाल है कि प्रत्यार्पण में सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा, अभी तक प्रत्यार्पण का पत्र गया ही नहीं है उनको। जहां तक ललित मोदी का सवाल है, अभी ईडी ने हमको एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी नहीं, जिस दिन भेजेंगे हम उसको आगे भेज देंगे।
विजय माल्या के संबंध में उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उसको हमारे सीपीबी डिवीजन ने एग्जामिन करके उसमें कुछ चेंजेस सुझाए हैं जो हमने वापस ईडी को भेजी है। जैसे ही ईडी से हमें वो पत्र मिल जाएगा हम वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी आगे भेजेंगे। मैंने पहले भी ये कहा था कि वो डिपोर्टेशन की बात यूपीए की सरकार करती रही, एक्स्ट्राडिशन की बात कभी नहीं की। एक्स्ट्राडिशन की बात इस सरकार ने आके शुरू की है। तो जैसे ही ईडी से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इन दोनों के बारे में मिल जाएंगी हम आगे भेज देंगे। विजय माल्या का ये दावा है कि सोहेल सेठ ने उनको बुलाया था किताब की उसमें, और वहां पे भारत के उच्चायुक्त भी मौजूद थे। जो कल की घटना की बात आप कर रहे हैं उसमें उच्चायुक्त का किसी तरह का कोई दोष नहीं है। अब सुहेल सेठ अगर अपने आप किसी को इनवाइट करते हैं तो हाई कमिश्नर को उसकी खबर नहीं। दो तरह के निमंत्रण गए थे, एक लॉन्च ऑफ बुक के लिए और एक जो हाई कमिश्नर ने रिसेप्शन किया उसके लिए। पहले वाले निमंत्रण एलएससी की तरफ से गए थे। एलएससी ने बाकायदा हमको पत्र लिखकर कहा है कि हमने उन्हें इनवाइट नहीं भेजा, और जो हाई कमिश्नर की तरफ से रिसेप्शन था उसका इनवाइट भी उन्हें नहीं गया। तो ना तो एलएससी का अधिकृत इनवाइट उनको गया, ना हाई कमिश्नर की तरफ से रिसेप्शन का इनवाइट उनको गया। और ये भी आप जानते हैं कि जब भारतीय उच्चायुक्त ने देखा कि विजय माल्या वहां उपस्थित हैं तो 5 मिनट में वहां से उठ के चले गए। मुझे नहीं समझ आता इसके बाद ये किस बात का इश्यू बन रहा है, किस बात का मुद्दा